You are watching Behind the Stumps, and Surinder Khannaji is with me. Mission Manchester is getting difficult for India because England start playing baseball cricket. ये सब हो रहा है अब मैनचेस्टर में, और मेरे साथ सुरेंद्र खन्ना जी इस वक्त मौजूद है। सुरेंद्र खन्ना जी क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि एक जानिब हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान बड़ी जो है इस हवाले से अपनी जो गलतियां थी उस पर काम करती हुई दिखाई दे रही थी। जब हमने लॉर्ड्स में मैच हारा तो उसके बाद यही लग रहा था कि इतना इजी नहीं होगा अब इंग्लैंड के लिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है बेसबॉल क्रिकेट जिसकी तवक्का नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, वो अब जो है इंग्लैंड खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। Avish, Assalamu alaikum, Namaskar, Sat Sri Akal, good morning. Conditions changed. In the first three test matches, it was Indian summer. Though we are playing in English summer, but it was Indian summer. So we were having the comfort level. Now it was English condition. They won the toss and put us in. सानू पहले खिलाया उन्होंने, but all credit to Rahul and Jaiswal, they gave a good start. We should have, put on about 450 runs minimum when you get a start of close to 100. And you're lucky that the ball is beating the bat so many times on the first day. Sai Sudarshan was lucky to be missed on the leg side by the wicketkeeper, a straightforward catch. Otherwise, we would have been less than 300 because Sai scored 61, He looked good, though catches are part and parcel of cricket. But I must give credit to Stokes, who's an outstanding player, one of the finest all-rounders in the game, and a great champion after Virat Kohli for Test match cricket. He showed why he is so valuable to not only to England, to this kind of Test match days cricket. He bowled a spell and troubled every batsman, and he picked up 5 wickets for 72 runs in 24 overs, which speaks volume of his and his first 5-wicket haul since he has become the captain. ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਜਦੋਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਟਿੰਗ, they can blame themselves. 5 of their batsmen got starts. One outstanding batsman, wicketkeeper in form, wicketkeeper batsman, injured himself. There is no need to play a reverse sweep in Test match cricket, that to a fast bowler, to an overpitched ball which hit him on the toe and he fractured it. I don't know whether he'll take further part in the match or for 2-3 months he'll be out. तो हमारी टीम के बल्लेबाज जो है वो अपनी जो है जो कुर्बानियां देते रहे। आप देखो 5 बैट्समैन हैं जिनको स्टार्ट मिले, किसी ने भी बड़ा 100 नहीं मारा जी। नहीं तो ये स्कोर 450-500 जब 100 का स्टार्ट ऑलमोस्ट हो जाए ओपनिंग, और स्पेशली इन सीमिंग कंडीशंस में, और बॉल सॉफ्ट हो जाए, देन यू एक्सपेक्ट। लेकिन स्टोक्स आई वुड से एंड जॉफ्रे आर्चर जब से वो लाए हैं, उनकी फास्ट बॉलिंग में एक अलग धार नजर आने लग गई है। एंड इंग्लैंड के ओपनर्स उसके बाद 225 पे 2 हैं, 164 का स्टार्ट दिया उन्होंने, और एक ने 94 मारे, एक ने 84 मारे। अनफॉर्चुनेट, बोथ ऑफ देम मिस्ड देयर हंड्रेड्स। और हमारा नया बच्चा कंबोज, उसने 1 विकेट लिया है। ही लुक्स प्रॉमिसिंग बट अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि पहला मैच था तो थोड़े नर्व्स होते हैं। जडेजा ने दिखाया, बैटिंग में कुछ नहीं किया तो 1 विकेट निकाल दी उसने। तो थोड़ा सा मुझे जैसे टर्न दिख रहा है, तो चौथी इनिंग जो है वो इंग्लैंड ने खेलनी होगी, प्रोवाइडेड इंडिया डजंट कंसीड अ बिग लीड, so that they chase a reasonable, they have a reasonable score to bowl out England in the last innings. उतने रन्स उनको बनाने पड़ेंगे। तो बिल्कुल आज की सिचुएशन देखो ताबिश, तो स्टोक्स एंड पार्टी, baseball is ahead of us and it's a very difficult task for Indian bowlers. लॉन्ग टॉयल अहेड जो मुझे नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह उनके बल्लेबाजों ने बुमराह को टैकल किया इस टेस्ट मैच में। बुमराह इज वन ऑफ द फाइनेस्ट न्यू बॉल बॉलर्स इन द वर्ल्ड, हम सब जानते हैं।
और कंबोज जो है वो उसको पहला ओवर करवाया, उसको जो कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की टीम ने वो भी काबिले तारीफ है। पंत दोबारा बैटिंग करने आए, वेरी हार्टनिंग, वेरी गुड जेस्चर फॉर द टीम, बट फुलिश कि आप जो है 10 नंबर आ जाते, आपने बैट्समैन का आगे रिदम खराब कर दिया, आपके पाँव में चोट है, पैर आगे जा नहीं रहा, इंग्लिश कंडीशंस में खेल रहे हो आप, तो अगर रन आप क्विक सिंगल ले नहीं सकते, तो वाशिंगटन सुंदर भी पैदल हो गया दूसरे एंड पे, और जो भी बल्लेबाज था। आई मीन वेरी ब्रेव, गुड फॉर द कंट्री, गुड। तो 10-11 नंबर आ जाते, जो आपने टुल्ले मारने हैं 39 से 50 पे पहुंचे हो, 52-54 पे, तो वो आप बाद में भी कर सकते थे, बट आपने रिदम खराब कर दिया, ये मेरा मानना। वेरी गुड जेस्चर, मैं तारीफ करूंगा, बट जैसे 3-0-3 चल रही है और आप सामने चले जाओ, तो भाई गोलियां चल रही हैं, सामने पहुंच गए तो मरोगे ही। आपके पाँव में फ्रैक्चर है, आपने तालियां बजवा ली, बड़ा हो गया, आप 10वें-11वें नंबर पे चले जाते। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आप सेकेंड इनिंग के लिए भी आपको समय मिल जाता, आप जो है 10-11 नंबर जाते तो 4-5 बैट्समैन जो विकेट खेलते वो 2 घंटे 2.5 घंटे खेलते, आपको और समय मिल जाता। आपकी टीम अगर इस सिचुएशन में होती, कंट्री की टीम, कि जी आपको 20 रन चाहिए, या वाशिंगटन सुंदर या जडेजा खेल रहा है, कोई खेल रहा है बैट्समैन, वो 90 पे है, उसका 100 करवाना है, या जीत के लिए आपको चाहिए, फॉलो ऑन बचाने के लिए 4 रन चाहिए, 6 रन चाहिए, आप चले गए। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, मैच्योरिटी इसमें होनी चाहिए टीम मैनेजमेंट में, और उसमें आप वो कितने 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाहर हो जाएगा, ये मैं सब इसलिए कह रहा हूँ। बहुत अच्छा जेस्चर है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट, बट लॉन्गर रन में आप देखो, आप अपने आप देख लेना, विकेट कीपिंग से वैसे वो बाहर हो गया। ये तो अभी सिस्टम इज वेरी काइंड कि आप बैटिंग कर रहे हो और विकेट कीपिंग आपके लिए कोई और कर रहा है 2 टेस्ट मैचेस में, इसके तो पैसे काट लेने चाहिए, जुरेल को दे देने चाहिए विकेट कीपिंग के पैसे। तो अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग नहीं कर पाया, 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाहर हो गया, इसका जो कार एक्सीडेंट हुआ था, ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, इज फ्रॉम माई क्लब ओनली, सोनेट क्लब, जहां से मैं खेला हूँ। ये बहुत बाद में आया है, बहुत देर में पैदा हुआ है, बहुत ब्रेव है, बहुत एक्साइटिंग प्लेयर है, सब चीजें, लेकिन कई बार आपकी जो है ना बहादुरी, उसके साथ इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए, जो ड्रेसिंग रूम में आपके कोच, कैप्टन और ये सीनियर प्लेयर जो बैठे होते हैं, अगर आप जो है जाके मैच जिता देते, गुड जेस्चर, उसके बाद भले ही आप 2 महीने के लिए 3 महीने आपको रिकवरी में लगेंगे, 4 महीने में। वो जो कार एक्सीडेंट हुआ था, इसकी लातों में ही चोट थी, अगर आपको ध्यान हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, जो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, आपने सारी चीजों पर बड़ी ब्रीफली जो है डिस्क्राइब किया है। सुरेंद्र खन्ना जी, कल जो एक चीज हमने नोट की, उस पर आप भी जरा अपने व्यूज शेयर कीजिएगा, कि हमने देखा जब इंग्लैंड ने बेसबॉल क्रिकेट को वापस से जो है अपनाते हुए दिखाई दी, इंग्लैंड की टीम, उनके बैट्समैन, इंडिया के पास उसकी कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही थी, इंडिया वाज जस्ट गोइंग फॉर इट। अब कल एक कमी और भी दिखाई दी, कल कुलदीप के हवाले से हम बार बार बात कर रहे थे, कुलदीप अगर होते तो शायद स्पिन कंडीशन में गोरे पड़ जाते, वो भी हमें जो है कमी नजर आई। जडेजा ने क्योंकि विकेट ले ली, वो चीजों का सिर्फ जडेजा ने थोड़ा फायदा उठाया। फिर हमारे सीनियर बॉलर है, कुछ भी कहें बुमराह के हवाले से, बुमराह उस तरीके से फायदेमंद फ्रूटफुल साबित नहीं हुए। तो ये वर्कलोड मैनेजमेंट की जो हम बात करते हैं, इसका बड़ा असर आजकल हो रहा है खिलाड़ियों पर, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है। देखो, ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं T20 क्रिकेट के, लेट मी टेल। जब T20 ज्यादा होने लग गई, गेंदबाज और बल्लेबाज और फील्डर सारे जो उनका माइंड सेट हो जाता है, बॉडी कहाँ से दिमाग से चलती है, दिमाग जो है इंस्ट्रक्शन देता, तब आपके लिम्स जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपको 20 ओवर की आदत पड़ गई है, बॉलर हो तो 4 ओवर डालने हैं, 2 ओवर पहले डालने हैं, 2 ओवर बाद में, सवा घंटे में आपने फील्डिंग करनी है, बैटिंग में गए आपने हिट मारनी है, क्योंकि डॉट बॉल खेलोगे तो बाहर से गाली पड़ेगी, क्राउड भी गाली देगा, तो उसमें लग गए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो थल्ले थल्ले। तो जब और माल से टनाटन, यहाँ पे 90 ओवर की आपने फील्डिंग करनी है, 20-25 ओवर डालने हैं, इसीलिए इंजरीज भी जो हो रही हैं खिलाड़ियों को, क्योंकि उनकी बॉडी वर्कलोड ले ही नहीं सकते, क्या मैनेजमेंट करेंगे।
अगर मैं इनका कोई थोड़ी बहुत भी मेरी से हो तो मैं इनको 8-8 बैट्समैन 6-6 बैट्समैन मिनिमम नेट में इन्हें कहूँ खिलाओ बॉलरों को, तब आपकी टांगों में भी जान रहेगी। अगर टांगे मजबूत तो रेस में आगे। हमारे जो पुराने हैं उस्ताद रहे हैं, कहते पुत्र जे टंगा मजबूत ने ना ते आपे जेड़ा 100 मीटर चैंपियन बन जाएगा, जे टंगा इच्चे जान नहीं हैगी तो की करेगा। सही बात। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वर्कलोड मैनेजमेंट वगैरह यार ठीक है यार, अल्टीमेटली जब आप मैच खेलते हो आपको ये थोड़ी ध्यान रहता है मेरे यहाँ निकल है, यहाँ गेंद पकड़ते ही करंट होना चाहिए, सामने टारगेट है बैट्समैन को कैसे आउट करना है मैंने। और इतने इतने ये कोई आज के कंबोज इज अ न्यू टू टेस्ट मैच क्रिकेट, अदरवाइज डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्हें 10 विकेटें भी ली हैं। देखो जब प्रेशर बनता है ना दो तरफ से, अगर एक तरफ से प्रेशर बनता है, जैसे हम कहते हैं बैटिंग, तो पार्टनरशिप की बात करते हैं। ऐसे ही गेंदबाजी में वसीम अकरम था तो वकार यूनुस था सामने, इमरान खान था तो सरफराज नवाज था साथ में। अगर एक एंड से आप दबाव बना रहे हो, दूसरे एंड से रन्स जा रहे हैं, गेंद पुराना हो रहा है, फील्ड खुल जाती। अगर एक एंड से विकेट निकल रहा है, दूसरे एंड से किफायती बॉलिंग हो रही है, वो सांस नहीं लेने दे रहा वो भी, और रन्स भी नहीं कंसीड कर, फिर वो जो प्रेशर क्रिएट होता है उस स्पेल के अंदर फिर विकेट गिरते हैं। अब देखो स्टोक्स जब बॉलिंग करने आता है उससे पहले पार्टनरशिप लग गई है, सबसे डिफिकल्ट काम वो कर रहा है अगर आप इसको एनालाइज करो तो, और फिर आके वो सेट बैट्समैनों को आउट करता। उनके थोड़ी जो कमी आ रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी सोच दिखाई, वो लेफ्ट आर्म को ले आए। वो जडेजा टाइप बॉलर निकला, उसने जायसवाल को स्लिप में कैच भी करा दिया और रन्स भी नहीं देता। और अब हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन आप ऑब्जर्व करना, 15-20 साल पहले ये डोमेस्टिक क्रिकेट में स्पिनर्स को खेलते थे, तो ये स्पिन के बड़े तगड़े प्लेयर थे। अब ये अब T20 खेलने लग गए, वो सीधी विकेटें होती हैं, उस पर टुल्ले लग जाते हैं। अब जो है गेंद टर्न होता है, वो खेला नहीं जाता जहां टर्न हो, और वो तो सीधी गेंद में उसने आउट करा दिया। ही प्लेड फॉर द टर्न और स्लिप में चला गया 50 पे बैटिंग करते हुए। आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि जो उनको आप दे रहे हो T20 वो खेल रहे हैं, पैसे भी उसमें मिल रहे हैं, उन्हें मजा भी आ रहा है। अच्छा कुछ चीजें इंडिया लॉन्जिविटी के लिए आपको अपने प्लेयरों को देश क्रिकेट में मजबूत करना चाहिए, फिर इंजरीज भी कम होंगी आपकी। बिल्कुल। अच्छा इसमें अगर ताबिश आप 20 ओवर का स्पेल रोज डालते हो तो उसके लिए मेहनत भी तगड़ी करोगे। बिल्कुल। फिर 4 ओवर डालने हैं आपने और 1.25 घंटा फील्डिंग करनी है, तो आप मजे से करोगे, ये तो अपने चुटकी बजा के काम हो जाएगा। अच्छा ये एक और चीज हम देख रहे हैं, जो बात हम बार बार करने की कोशिश कर रहे थे, हमने अपने लास्ट व्लॉग में भी की थी, किरण नायर के हवाले से और रेड्डी के हवाले से। शायद टीम इंडिया और गौतम गंभीर एंड कंपनी रेडी नहीं थी हम इन खिलाड़ियों को मजीद मौका देने के लिए। दे टेस्टेड अगेन सुंदर एंड ठाकुर। तो क्या समझते हैं जी जी, तो ये बेहतर ऑप्शन है दोनों इंडिया टीम के लिए इस वक्त, जिस तरीके से उन्होंने इंप्रेसिवली खेलते हुए दिखाई दिए। देखो मेरा ये मानना है कि अगर यंगस्टर साई सुदर्शन को आप एक मैच देते हो तो आप वो 30 करके आउट हो गया, तो आप उसको 2-3 मैच और देते, क्योंकि ही इज ओनली 23। आपने करुण नायर 30 पे आउट हुआ, 20 पे आउट हुआ, 34 पे आउट हुआ, उसको तो 3 टेस्ट मैच दे दिए। इसको फिर वापस ले आए आप 23 साल वाले को, इसने आके 61 बना दिए। अगर ये लगातार खेल रहा होता तो ये वाली इनिंग में 161 होते इसके, अगर आपने उसमें कॉन्फिडेंस दिखाया होता, बिकॉज ही इज यंग, फील्डिंग में भी आपको उसका एडवांटेज मिलता, प्लस 3 नंबर पोजीशन में आके आपको वो अच्छी स्टेबिलिटी देता। अब हमारा स्टार्ट 94-98 का हुआ, कितने का, इसने आके 61 मारा, इसने भी पार्टनरशिप लगा दी, गिल आउट हुआ, पंत के साथ बहुत अच्छा चल रहा था, पंत प्लेड अ फुलिश शॉट, उसकी जरूरत नहीं थी वहां पे उस शॉट की। और पंत अगर इसके साथ खेलता रहता, राइट लेफ्ट ये दोनों लेफ्ट हैंडर जो है बड़े कंट्रोल में लग रहे थे और इनकी साझेदारी भी अच्छी चल रही थी, तो इंडिया जो है 450 500 भी कर जाता। एक बंदा अगर 100 मारता इनमें से तो हमारा स्कोर 500 हो जाता, और 500 बड़ा स्कोर होता है जब आप सेकंड खेलो।
या फिर उसमें ड्रॉ की तरफ आप चलते, या फिर आपको जल्दी जल्दी करना पड़ता कुछ भी रिजल्ट लाने के लिए। तो ये जो पॉलिसी बिल्कुल है रेड्डी, इंजरी, देखो इंजरी के ऊपर मेरा ये मानना है ये कभी भी हो सकती है, बट उसके कारण है बिकॉज दे आर प्लेइंग टू मच ऑफ T20 क्रिकेट, और फिर टेस्ट मैच बिल्कुल खेलते हैं तो बेशक, अपने आप जो है, हाँ वेरी सिंपल। बिल्कुल बेशक। अच्छा, इन तमाम सिनेरियोज में नाउ बैक टू दी मिलियन डॉलर क्वेश्चन, और ये जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ये है कि पाकिस्तान ने फाइनली बांग्लादेश को बांग्लादेश की कंडीशंस में हरा दिया। वो कहते हैं ना, हम जलील तो हुए लेकिन रुस्वा नहीं हुए, तो मतलब जलील हो चुके हैं लेकिन रुस्वा नहीं हुए। दैट क्रेडिट गोज टू बांग्लादेश टीम। उन्होंने ना सिर्फ सीरीज जीत ली, लेकिन इसके साथ साथ अब एक और अहम बात ये सामने आ रही है कि एशिया कप क्या वो होगा, नहीं होगा, पाकिस्तान खेलेगा, हिंदुस्तान खेलेगा, यूएई में होगा, बांग्लादेश में होगा, वापस से कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। और इन तमाम चीजों में एक और पाकिस्तानी जो क्रिकेटर है सरफराज नवाज साहब, जो सुरेंद्र खन्ना जी के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उनकी भी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, जिन पर उन्होंने वीडियो भी ली है। तो देखो वो ऐसा मैं है, चाहूंगा सबसे पहले खन्ना जी उस पर जरा आप कमेंट करें, क्योंकि ये तो हमें पता है वो डेली चेकअप के लिए जाते हैं। वो वायरल हो गई उनकी पिक्चर के नहीं ही इज फाइन। सरफराज नवाज जो वो जो है 6 जी मंथ्स या ईयरली चेकअप होता है ना, वो उसके लिए था, और एंड ही इज हेल एंड हार्टी, इज फाइन। आई स्पोक टू हिम आल्सो, कहते नहीं सब ठीक हैगा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦਿੱਤੀ हाँ, ਮੇਰੀ, ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ, डॉक्टर एंड द हॉस्पिटल कॉल्स यू नो कि 6 महीने हो गए, आ जाओ अब चेकअप के लिए। इट्स नॉट लाइक आ कंट्री ना, इंग्लैंड और बाहर रहने ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। कमिंग टू बांग्लादेश, बिल्कुल बिल्कुल मैं वही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स एंड वंडरफुल ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਟਸ ਗੁੱਡ, ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਨਵਿੰਸਿੰਗਲੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ 74 ਰਨਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, so it will give them lot of confidence. I hope next ਜਦੋਂ ਖੇਡਣਗੇ so they will gel better, they'll play better. और as far as बिल्कुल एशिया और कप is concerned, I told you कि एशिया कप जरूर होएगा, और ਉਹਦੀ modalities they'll have to work out because there is lot of hue and cry India Pakistan ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ after ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ to accept, and let's see. I stay positive कि खेड ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। I mean you can only control the controllable. बिल्कुल खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, और यही बात है जो सुरेंद्र खन्ना जी कह रहे हैं। और देयर शुड बी नो पॉलिटिक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, स्पोर्ट्स विल बी स्पोर्ट्स। नहीं और यही बात पर हम गुफ्तगू कर रहे थे साबित हो तो ठीक है, लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। We are in the 21st century, और जिधर भी देखो हालात ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। Ultimately you'll have to sit across the table and sort things out. सर अब तो थाईलैंड भी जंग कर रहा है, लेकिन क्या क्या है वर्ल्ड इज ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। बिल्कुल, ये एक ट्रबलेबल होता है, एक तकलीफ की बात होती है। बिल्कुल सुरेंद्र खन्ना जी, किसी का वो है नहीं कि वो पाकिस्तान तो है, वो इजराइल तो है, कितों है, यूक्रेन तो है, कितों है, हर एक ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਫॉर नो रीजन, फॉर व्हाट, ईगो। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 40-50 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। someone should come, you know, divine intervention should be there. हाँ, ਜੇ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਬੰਬ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
बिल्कुल, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट व्लॉग जिसे आप मुलाहिजा कर रहे थे। इजाजत दीजिएगा मुझे और सुरिंदर खन्ना जी को, और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। शुक्रिया, शबा खैर।